Hello everyone, I Akshita Sharma welcome you all back to the maths class. Children, in our previous class we have started our new chapter. This is chapter number 6, Understanding the Fractions. And in our previous class we had the introduction to this chapter where we have learned how to divide an object into number of groups. For example, we have taken a chapati and divided into groups of 2, 3, 4, 5 and so on. Then we have also learned how to show fractions on a numbered line. Now let us start today's class. Here you are going to learn about decimal numbers. So let's get started. Children, as you know, in the previous classes only in numbers chapter we have learned all the house names. We have ones, tens, hundreds, thousand. Now with the help of these houses only we are going to learn further about decimal numbers. Okay, decimal numbers जो point के बाद आते हैं जिसे हम बोलते हैं दशमलव. Okay, हम पहले ये पढ़ते हैं, उसके बाद एक हम टेबल सीखेंगे. टेबल से आप सीख पाएंगे किस तरह से हम decimal numbers को show करते हैं. So let us start here. It is clear from the upper table that the value increases 10 times as we move one step right from left. Okay, बच्चों यहाँ पर आपको पता है जैसे हमने सीखा था वंस होता है सबसे छोटा घर. Okay, इसके बाद हम जाते हैं टेंस में. तो ये टेंस में कैसे जाता है, 1 से 10 आया तो ये 10 से मल्टीप्लाई होके जाता है. 10 से हंड्रेड्स में कैसे जाता है, फिर से 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो, वी विल गेट 100. 100 to thousands we will get 100 multiplied by again 10. So this is the same thing they are saying कि हम लेफ्ट साइड में जब जाते हैं वो मल्टीप्लाई होके जाता है. बट व्हेन वी गो इन द स्मॉलर हाउसेस, जैसे हमें जाना है 1000 से 100, 100 से 10 और 10 से 1s, ये हम किस तरह से जाते हैं, डिवाइड करके जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1000 से हमें 100 में जाना है तो हम 100 को यहाँ हम 1000 को डिवाइड कर देते हैं 10 से. फिर 100 से 10s में जाना है, यहाँ भी हम 100 को डिवाइड कर देंगे 10 से, हमें मिलेगा 10. फिर 10 से 1s में जाना है तो 10s को 10 से डिवाइड कर दो, हमें यहाँ मिलेगा 1. सो मूविंग ऑन द अदर हैंड the value reduces to 1 by 10 times as we step to the right side. Accordingly, we can understand this. So children, this is the same value. जब हम value बढ़ाते हैं, बड़े हाउस में जाते हैं, वो हम जाते हैं मल्टीप्लाई करके. बट बड़े हाउस से जब हम छोटे हाउस में आते हैं वो हम आते हैं डिवाइड करके. ओके, अगर सेम वैल्यू के हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 से 10s में जा रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 100 में फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से 1000 में जाने के लिए फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम. बट बड़े से छोटे हाउसेस में जब हम जा रहे हैं हम करेंगे डिवाइड, और यू कैन कॉल इट 1 by 10th पार्ट. दिस इज सेम एज डिवाइडिंग 10. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस बेटर. First point we have learned is hundreds is 1/10th part of thousands. Its position is next right to the thousand. इसमें बोला जा रहा है कि hundreds क्या है, 10th part है thousand का. For example, यहाँ हमारे पास 1000 है, इसे आप डिवाइड कर दीजिए और इसका 10th पार्ट निकाल दीजिए, हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा. That means 100 is 1 by 10th part of thousands. This was this point. Now point number 2. Tens is 1/10th part of hundreds. Its position is next right to the 100. फिर से हम राइट साइड जा रहे हैं, बड़े से छोटे हाउस जा रहे हैं, 100 से 10s में जा रहे हैं, फिर से हम क्या कर देंगे, 1 by 10 कर देंगे हंड्रेड्स का, तो हमें हमारा नेक्स्ट हाउस मिलेगा, वो है छोटा हाउस, दैट मीन्स टेंस. Now third point is ones is 1/10th part of tens. Its position is next right to tens. So here we have understood children that when we are going left side to the right side हम जा रहे हैं, मतलब छोटे हाउस में जा रहे हैं, हम जाएंगे डिवाइड करके. बट हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, बड़े हाउस में जा रहे हैं, वहाँ हम जाते हैं मल्टीप्लाई करके. Thus the place value of 1/10th of its immediately right to it. On this basis, the above table can be read increasing from left right as follows. तो देखिए यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, यहाँ तक आपको होल नंबर्स के बारे में पता है. 1 डिजिट है, हम डालेंगे वंस में. 2 डिजिट का नंबर है, जाएगा फिर टेंस और वंस में. 3 डिजिट का 100 में और 4 डिजिट का 1000 में. हम 5 डिजिट तक 10,000 भी पढ़ चुके हैं. सो चिल्ड्रन, टिल हियर यू नो 1s to 10s, 10s to 100s and 100 to 1000. व्हेन वी आर गोइंग टू द लेफ्ट साइड, हम बड़े हाउस में जा रहे हैं 10 से मल्टीप्लाई करके. अब आप छोटे हाउसेस का यहाँ नाम सीखिए. आफ्टर वंस, इससे जो छोटी डिजिट होती है यहाँ इसके बाद जाती है ये डेसिमल लगने के बाद. ओके, और इन हाउसेस का क्या नाम होता है, 1/10. इसके बाद
100th, 1000, इसका मतलब ये इसका पार्ट होता है, ये है 10th पार्ट, ये है 100th पार्ट और लास्ट वाला है 1000th पार्ट. ओके, सो हियर आफ्टर जस्ट वंस इट इज शोन एज 10th. ओके, 1 के बाद आप डेसिमल लगा के जब नेक्स्ट में जाएंगे, छोटे हाउस में जाएंगे, इसका मतलब वो होगा 1/10th पार्ट. 10th पार्ट के बाद होगा 1/100th पार्ट और 100th पार्ट के बाद होगा 1/1000th पार्ट. ओके, सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग वी हैव गॉट रिलेटेड टू डेसिमल्स. नाउ लेट अस सी हियर. It is clear from the above table that हमने टेबल से क्या सीखा? फर्स्ट पॉइंट, 1/10th part of unit that is ones is placed on immediate right of ones and it is called tens. Okay, ये हमने सीखा कि ones हमारे पास हाउस है, इसके बाद हम छोटे डिजिट पे जा रहे हैं, वो हम डेसिमल लगा के जाते हैं और इस पार्ट को हम बोलते हैं 10th पार्ट. और ये क्या होता है? 1/10 होता है, डेसिमल के बाद ये डिजिट आती है. नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग. Second point, 1/10th part of 10th is placed on immediate right of the 10th part and it is called 100. इसका मतलब 10th part होता है जब 1/10 और इसके बाद वाला हाउस होता है बच्चों 100th, that is the 100th part of ones हम बोल सकते हैं. और 10 से जब हम 100th में जाते हैं तो ये आता है 1/100, फिर से 10 को डिवाइड करने पर. Let's move to the next part. Third part here. 1/10th part of 100th is placed on the immediate right. फिर से हम राइट साइड में जा रहे हैं, मतलब डिवाइड करके जाएंगे और हाउस छोटा होगा. Of 100 and it is called thousands part. Okay, which is 1/1000 of unit. Unit से जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो 1/10 होगा, 1/100th होगा और 1/1000 होगा. बट जब हम इमीडिएट राइट साइड में जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ है 1000 हाउस, ये 1000 हाउस 100th के नेक्स्ट पार्ट होता है, तो 100th का तो ये 1/10 होगा. बट हम 1 से जब कंपेयर कर रहे हैं तो उसके हम थर्ड हाउस में जा रहे हैं, तो वो हो जाएगा बच्चों 1/1000th. तो ये होता है 1000 पार्ट. नाउ लेट अस प्रैक्टिस इट मोर. In the initial numbers to show the 10th place which comes immediately right to the unit place, a point, that is this decimal, is put between unit place and the 10th place which is called the decimal point. So this understanding we have got. जब हम ones के बाद जाते हैं तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे? This is the most important part, decimal. इसके बाद ही हम जाते हैं 10th part में, 10th से 100th में और 100 से thousands में. Okay children, so till here you know that ones, फिर tens, 100 और 1000 ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बट डेसिमल लगने के बाद वो हो जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 5762, सो यू नो दैट दिस इज 5762. इसके बाद छोटे यूनिट्स आएंगे डेसिमल लगने के बाद. दिस इज 391, इसे 391 नहीं बोला जाएगा. वी विल अंडरस्टैंड दिस. नेक्स्ट वी हैव 803, सो दिस इज number name as 803, then a decimal is put, then we have 704. So let us understand the number names of these decimal points. Again we have the same table and same table. यहाँ पर ये जा रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये प्लस हो रही है और यहाँ जाके ये डिवाइड हो रही है. ओके, कम होते जा रहे हैं तो यहाँ ये छोटी होती जा रही है. सो वंस, टेंस, 100, 1000 और डेसिमल लगने के बाद हमारे पास है 10th, 100th और 1000. इसका मतलब आपको पता है डेसिमल लगने के बाद हमें 10th हाउस होता है 1/10, 100 होता है 1/100 और 1000 होता है 1/1000. नाउ हाउ डू वी कॉल देम? इसके हम नंबर नेम सीखेंगे यहाँ पर. सो चिल्ड्रन, द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर रेड सेपरेटली 1 by 1. इन्हें हम सेपरेटली पढ़ते हैं, हाउसेज में मिला के नहीं पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल वंस, टेंस, 100 और 1000 के हाउसेज में हमारे पास डिजिट है, ये आपको पहले से पता है. 5762 को आप मिला के बोलेंगे 5762. बट डेसिमल लगने के बाद ये हियर वी हैव द डेसिमल. ओके, यहाँ हमारे पास है 10th
हाउस में 3, 100th में 9 और 1000th में है 1. इसे 391 नहीं बोला जाएगा, दैट विल बी रॉन्ग. इसे हम किस तरह से बोलेंगे? सेपरेटली बोलेंगे एक एक डिजिट को. सो दिस विल बी नोन एज 391 and not 391. So here we have the first part. 5762.391 is read as 5762.391. Okay, इसे separately बोला जाता है decimal के बाद. Children, now let us see how we will read the second number. Second number we have here 803. Here you can see 803, and after decimal we have here 3 places. At 10th place we have 7, at 100th place we have 0, and at 1000th place we have here 4. So how we are going to read it? Let us see. We will read it as 803.704. So children, you remember here we will read it separately after decimal. We will not read it like 704. Separately we will read 704. Okay, now let's see the next one. Third number we have 15 point. Here is the third number 15 point, and after decimal we have 2 places. At 10th place we have 0, and at 100th place we have 8. Now this is very important. You have to include the 0 here. So we will read it as 15.08. Children, if you read it only 8, then it will be wrong. So remember this, including 0 always. Now last example also we have in the same way. Fourth number we have here 6 point, and after decimal we have 3 places, out of which 10th place पर भी 0 है और 100th place पर भी 0 है. So while you read it, you have to call it 0. How we will read it, children? 6.002. It is 002. बच्चों, अगर यहाँ पर हम सिर्फ 2 बोलेंगे 6.2, तो इसका मतलब हो गया ये 6 है 0.2. इसका मतलब इसके पीछे 2 0 आ सकते हैं. सो 200 और 002 में बहुत बड़ा डिफरेंस है. सो नाउ यू अंडरस्टूड अबाउट दीज डेसिमल्स हियर. नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू understanding some more concepts related to the same topic. We will continue in the next class, children. Thank you everyone. Keep learning, keep growing. I will see you all in the next class.